So, good evening to all of you. It is our very great pleasure to have with us Dr. Harsh Udawat ji. Who's currently working with he's providing his services in SDMH Santokh Bahadur Ji Memorial Hospital as a gastroenterologist. So, first of all, I would like to invite Kuldeep ji for welcome of our Dr. Saab, and then we'll move further. Thank you so much, Shishir Agrawal sir. First of all, I would like to thank Dr. Harsh Udawat sir for accepting our invitation to be a speaker on such a topic. And on behalf of Management Committee Jaipur branch and all the members of the branch, we would like to welcome you in this platform. So we are very eagerly waiting for your deliberation, sir. And over to Shishir sir, please proceed. Thank you, Kuldeep ji, for such a nice welcome of our guest speaker today. So, moving further, let me introduce our today's faculty. Harsh Udawat ji is an expert in the disease of digestive system and liver. That he is a gastroenterologist. He is based in Jaipur, Rajasthan, and has an experience of 18 years. He has completed his postgraduate from the Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, from 2003 to 2005. He is having very vast experience. Jaipur branch of ICI has started a series of videos solving the questions of general problem, which are our members are in the situation of very dicey situation they are, and having so much confusions about the problems they are having. So we are inviting the guest speakers day by day, the senior most speakers, senior most doctors from throughout the Jaipur, having their expertise in different fields, so that our members and students can be benefited by their words and wisdom and their advice. So we have some questions that are very general questions, because every human being has a very unique thing that some may have some problems, some may have some problems. So today, this particular session is basically related to our stomach. And stomach, जो हमने बचपन से कहानी सुना करते थे कि शरीर के पूरे अंगों ने अलग अलग हड़ताल कर दी, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा. अगर पेट ने हड़ताल कर दी तो हमारा पूरा शरीर उसका दुख पाता है. और उन पेट से रिलेटेड समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और उनके क्या निराकरण है, उनके क्या सॉल्यूशन है. हमारे साथ आज बहुत ही जयपुर के जाने माने हर्ष उदावत जी, जो फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, I straight away come to the questions which we have drafted for sir. First matter of discussion is, जो generally अभी हम लोगों को problem face कर रहे हैं, what are the effects and symptoms of COVID-19 infection on digestion system? So first of all, thank you so much for inviting me to this prestigious forum. And आपने जो सवाल किया है वो भी एक बड़ा important सवाल है. और देखिए, कोविड के जनरल सिम्टम्स तो आपको पता ही हैं कि मरीज को बुखार होता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खांसी होती है, बहुत थकान होती है, शरीर के अंदर दर्द होता है, हेडेक हो सकता है, थोड़ा गला खराब हो सकता है. पेट की प्रॉब्लम्स भी उससे जुड़ी हुई हो सकती हैं. सो एक रिसर्च की गई थी अभी कुछ दिन पहले करीब 8,000 कोविड के पेशेंट्स के अंदर, और उसमें ये देखा गया कि करीब 15% लोगों को ये कोविड के जो इन्फेक्शन मैंने आपको बताए उसके साथ साथ पेट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो भी होते हैं. सो सबसे कॉमन होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल भूख खत्म हो जाती है. उसके बाद है डायरिया, उसके बाद है पेट में दर्द होना, उल्टी और उल्टी जैसा लगना. 10% के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनको कोविड के कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते. बुखार नहीं होगा, उनको खांसी नहीं होगी, सांस में तकलीफ नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, केवल पेट के इश्यूज होंगे. जैसे मैंने आपको बता दिया, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द, उल्टी और उल्टी जैसा होना. सो ये केवल 10% लोग होते हैं. अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इन पेशेंट्स को लंबे समय तक पता नहीं पड़ता है कि हमें कोविड इन्फेक्शन है, और ये अपने फैमिली को भी, क्योंकि आइसोलेट नहीं करते हैं, पता नहीं पड़ता, टेस्ट नहीं करवाते. सो पर्सनल और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं थोड़ी लंबी चल जाती हैं.
सो आइसोलेट नहीं होंगे तो दूसरों को चांस रहता है कोरोना फैलाने का। तीसरी चीज जो है बताना मैं चाहूंगा कि कुछ पेशेंट्स अभी हम भी देख रहे हैं, और ऐसे करीब 3 पेशेंट्स का रिपोर्ट भी हमारे जर्नल्स में आया है कि उनको कोविड की वजह से पेनक्रेटाइटिस की बीमारी हो गई, अग्नाशय में सूजन हो गई, हम उसको अक्यूट पेनक्रेटाइटिस कहते हैं। और हम भी अभी हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देख रहे हैं कि कुछ कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके कोई और कारण पेनक्रेटाइटिस का नहीं मिल रहा। 2 पेशेंट्स मेरे को याद है उनके कोविड पॉजिटिव था। उसके बाद लिवर टेस्ट की एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल सब लोग ब्लड टेस्ट और हेल्थ चेकअप कराते हैं, और उसके अंदर एक टेस्ट होता है एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें कुछ लोगों का बिलिरुबिन बढ़ जाता है, एंजाइम्स होते हैं एएसटी और एएलटी वो बढ़ जाते हैं। एक टेस्ट होता है लिवर का बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, वो बढ़ जाता है। प्रोटीन्स आप जानते हैं बॉडी में होते हैं, वो लिवर ही बनाता है, तो वो एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन होता है, वो कम हो जाता है। सो देखिए कि जब भी लिवर टेस्ट की एबनॉर्मेलिटी कोविड के पेशेंट के अंदर आएगी तो इसका मतलब वो जो बीमारी है वो थोड़ी सी सीरियस ज्यादा है। एल्ब्यूमिन अगर कम हो गया तो ये सीरियस कैटेगरी के अंदर आने के उस पेशेंट के चांसेस हैं। फिर आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा, सिरोसिस ऑफ लिवर। सो जिन पेशेंट्स को सिरोसिस ऑफ लिवर है और उनको कोरोना हो गया, उनका आउटकम बहुत पुअर है। सो मेजॉरिटी ऑफ देम वुड डाई, ये ऐसा देखा गया है। कुछ दवाइयां जो कोरोना में काम में आती हैं वो भी लिवर के टेस्ट को ऊपर नीचे करती रहती हैं, और अगर 5 गुना से ज्यादा लिवर के टेस्ट हो गए हैं बीमारी के कारण से तो हम उसमें एंटीवायरल जो दवाइयां होती है वो हम नहीं दे सकते हैं। एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना केवल या नेजोफेरिंग से ही नहीं रहता है, बट ये स्टूल्स में भी बाहर निकलता है। और ऐसा कहा गया है कि अगर बॉडी में यहां पर थ्रोट के अंदर कोरोना नेगेटिव हो गया है लेकिन उसके बाद तक वो स्टूल के अंदर आ सकता है। उसकी अभी हमारे को बहुत ज्यादा उसकी क्या सिग्निफिकेंस है हमें नहीं पता, बट ये जरूर कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको कोरोना है तो पेरेंट्स ध्यान रखें कि उनके स्टूल्स को ढंग से हैंडल करें। तो ये कुछ थे कि डाइजेस्टिव सिम्टम्स क्या होंगे कोरोना इन्फेक्शन के। Right, sir. Moving further, sir, we chartered accountants are having sedentary lifestyle. जी Like हम लोग सीट पर 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक हमारी सिटिंग रहती है। जी, और जी। जो ये कोरोना का पीक चल रहा है अभी, मतलब ये अगस्त, सितंबर, ये हमारी ड्यू डेट्स भी होती हैं फाइलिंग्स की, तो इस टाइम हमारा बैठना सीट्स पे बढ़ जाता है। तो सर क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल के क्या साइड इफेक्ट्स हैं एंड हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग? सो ये केवल आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, आजकल मेजॉरिटी लोगों की प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अब देखिए कि ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल हम कहते क्या है, क्या मतलब होती क्या है सीडेंटरी लाइफस्टाइल? तो या तो आप बैठे हुए हैं या आप लेटे हुए हैं और कोई एक्सरसाइज आप कर नहीं पा रहे हैं, कंप्यूटर पे लंबे समय तक बैठे हैं, फोन के साथ बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस अपने काम पे जाने के लिए 2-2 घंटे, आप टीचिंग का काम ऑनलाइन करे जा रहे हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे जा रहे हैं, ये सब जो है सीडेंटरी हैबिट्स हैं। और इनसे जो बीमारियां होती हैं उनको हम कहते हैं सिटिंग डिजीजेस। सिटिंग डिजीजेस, बैठे बैठे जो बीमारी हो गई। तो मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मोटापे के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे घुटनों में दर्द होने लग गया मोटापे की वजह से, सांस लेने में तकलीफ हो गई, राइट। फिर ब्लड प्रेशर इन लोगों को ज्यादा होता है, डायबिटीज की बीमारी इनको जल्दी हो जाती है, कुछ कैंसर्स होने लग जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक स्टडी में तो यह भी बताया गया है कि जो लोग सीडेंटरी ज्यादा रहते हैं उनका रिस्क ऑफ डेथ ज्यादा होता है हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये हम सबके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है। तो जो 10 घंटे से ज्यादा बैठते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस या हार्ट डिजीजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ठीक है, तो करें क्या? ऐसा तो है नहीं कि काम छोड़ देंगे, तो कुछ सॉल्यूशंस हैं। सो अब सॉल्यूशंस क्या है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप 1 घंटे बैठे और 1 घंटे बैठने के बाद आप कुछ 5 मिनट चल लिए, खड़े हो गए, राइट। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, सो आजकल कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, व्हाट्सएप भेज दिया, मेल कर दिया। सो नहीं, आप बहाना ढूंढिए चलने का। आप अपनी सीट से उठ के
दूसरे के सीट पे जाके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे पहले किया जा सकता। आजकल तो घर में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में फोन हो जाएगा और बैठे बैठे ही सारा काम हो जाता है। सो हमें बहाने चाहिए चलने के, राइट। अच्छा, एक एक्सपर्ट ने तो ये भी कहा कि आप 20 मिनट के बाद 8 मिनट खड़े हो जाएं और 2 मिनट चल लें। सो कुछ लोग कह रहे हैं 20 मिनट बाद ही कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 1 घंटे बाद ही आप कर लो। फिर 10,000 स्टेप्स पर डे, 10,000 स्टेप्स पर डे, आजकल तो एप्स हैं उसके ऊपर आप कर सकते हैं, उतना तो उतना चलना ही चलना है। और मान लीजिए आप नहीं चल पा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो अभी केवल 2,000 स्टेप्स ही चल पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, आज से उसको 4,000 स्टेप्स कर दीजिए, बढ़ाइए, धीरे धीरे 10,000 स्टेप्स पर आने लग जाइए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे आज मैंने एक्सरसाइज कर ली, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया, अब तो मैं ठीक हूं। सो केवल 1 घंटा एक्सरसाइज का मतलब नहीं है, 23 घंटे आप क्या कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सो इसलिए मैंने ये बताया कि थोड़ी थोड़ी देर में उठ के चलते रहें। जहां पर लिफ्ट है आप सीढ़ियां लें, लिफ्ट पे ना जाएं। बैठे बैठे छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहें, गर्दन को हिला लें, कंधों को हिला लें, उठ के खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आगे और पीछे झुक लें, थोड़ा सा बैठे बैठे योग के पोजेस कर लें, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। और अभी तो ये जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, ये सारी आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। एक गुब्बारा पास में रख लीजिए और उसको मुंह से फुलाइए, वो आपकी लंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपकी, क्योंकि जब आप बैठे रहते हो तो आपका एक तो कैलोरीज बर्न नहीं होती है, आपकी मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स ये सारी आपकी खराब हो जाती है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लग जाते हैं। सो इस कारण से सारी बीमारियां होने लग जाती हैं। So in this case, it is important to move. Yes, चाहे yes, कितना it भी is करें, important to move. move होना important है। Okay जी, sir. जी, जी, So moving further sir, एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जी। what would be appropriate lifestyle in present era so जी, as to जी। keep a healthy digestive system? जी हाँ, जी हाँ। सो कहा जाता है कि सारी बीमारियां जो हैं वो पेट से ही निकलती हैं, और अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपकी बहुत सारी बीमारियां आपको होंगी। और ये देखा गया है कि अगर आपका खान पान ठीक नहीं है सो आपको बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो कि आगे प्रॉब्लम कर सकती हैं। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत कॉमन बीमारी है फैटी लिवर। जिन लोगों को फैटी लिवर होता है वो आगे जाके उनका लिवर भी खराब हो सकता है, उनकी हार्ट की बीमारियां भी हो सकती हैं, उनको कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं एक लाइन में कुछ कहूं तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, एप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल इन प्रेजेंट एरा, सम्यक श्रम, सम्यक विश्राम और सम्यक आहार, मतलब बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड रेस्ट एंड बैलेंस्ड एक्टिविटी, इन सब का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे निग्लेक्टेड चीज से पहले चलता हूं और वो है रेस्ट ओब्लिक स्लीप। ठीक है। सो कितनी नींद की जरूरत है? रात को 7 घंटे की। मैं केवल अडल्ट्स की बात कर रहा हूं, बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूं। कम से कम 7 घंटे की नींद रात को, प्लस 45 मिनट्स का एक रेस्ट या नैप आफ्टरनून में। अगर हम ये 45 मिनट का नैप आफ्टरनून में ले लेते हैं सो हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और हमारा आउटपुट भी बढ़ता है, एनर्जी भी रहती है, और ये रिसर्च से प्रूवन है। अगर आप देखिएगा, अगर आप कभी ऐसा होगा कि आपने रात को नींद मिस कर दी है तो आप कहते, घर वाले कहते हैं अरे दोपहर में जरा 1 घंटा सो लो फ्रेश हो जाओगे, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, स्लीप हाइजीन आजकल एक कंसेप्ट आया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, हर जने की नींद की एक प्रॉब्लम है। क्योंकि रात भर 2 बजे भी व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तो आपको कोई ना कोई आपको इमोजी जरूर भेजना है उसके ऊपर। सो अब देखिए, एक तो रूम आपका डार्क होना चाहिए जब आप सो रहे हो, अंदर कोई एलईडी लाइट, स्क्रीन, टीवी नहीं होना चाहिए। नींद के 2 घंटे पहले कुछ भी ना खाएं, और पर्टिकुलरली सब लोग आजकल सोने के पहले 1 ग्लास दूध जरूर लेते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। एक स्पेसिफिक टाइम बनाइए सोने के लिए और एक स्पेसिफिक टाइम बनाइए जागने के लिए। ये तो हो गया आपका फिजिकल रेस्ट। फिर मेंटल रिलैक्सेशन और रेस्ट के लिए खुश रहिए, स्पेंड टाइम विद फैमिली मेंबर्स, कम्युनिकेट करिए फैमिली मेंबर्स के साथ, मेडिटेशन है, मंत्र और चैंट्स हैं वो करिए, प्रेयर करिए, पूजन करिए।
और इस कोविड टाइम में आपकी इन सब चीजों को करने से इम्यूनिटी विल बी एट अ वेरी हाई लेवल। और स्ट्रेस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता है, स्ट्रेस कंट्रोल कर रही है, बहुत सारी चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं बिना दवा के। दूसरी चीज जो है डाइजेशन को ठीक रखने के लिए, वो मैंने बताया आपको, सम्यक श्रम, एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी। सो उसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, 1 घंटे का रेस्ट या 10,000 स्टेप्स लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज और योगा भी करना चाहिए। कोविड टाइम्स में आपकी इम्यूनिटी एकदम बूस्ट हो जाएगी अगर आप ये करेंगे तो। अब खान पान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के समय में। सो देखिए, सबसे पहले उठते ही क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उठते ही आपको बिना ब्रश किए आपको हॉट या वार्म, गुनगुना या गर्म पानी लें, 2 से 3 ग्लास, बिना ब्रश किए, एम्प्टी स्टमक, बैठ के शांति से घूंट भर भर के धीरे धीरे लें, और उसके 45 मिनट में कुछ न लें। पानी के और क्या नियम है? कभी भी ठंडा पानी या रेफ्रिजरेटेड पानी कभी भी न लें। खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद ही पानी पिए, ठीक है? और क्या पी सकते हैं? सो फ्रेश फ्रूट जूस ले लीजिए, सूप ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, लस्सी ले लीजिए। और आजकल तो हमारे जो है जूसेस बहुत मिल रहे हैं, गिलोय का, एलोवेरा का, नींबू पानी, आंवला, ये सब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। काढ़े या डिकॉक्शंस हैं, वो आप ले सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब पानी को स्टोर कैसे करें? सो कभी भी प्लास्टिक की बोतल में पानी को स्टोर ना करें, कांच की बोतल या आपकी स्टेनलेस स्टील की बोतल और या फिर मटके का पानी ही पीजिए। टोटल पानी आपको करीब 2 से 3 लीटर डेली लेना चाहिए। क्या क्या चीजें न लें? ज्यादा चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बहुत बहुत खराब है, आपके डाइजेशन को ठीक नहीं रखेंगे। खाने पीने का नियम, फ्रेश एंड नेचुरल फूड ही लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। आउटसाइड जंक, फास्ट फूड, रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, सड़ा हुआ, आई मीन 3 घंटे से ज्यादा बना हुआ खाना, स्टोर्ड और पैकेज्ड फूड को न लें, क्योंकि जो भी पैकेज्ड फूड या स्टोर्ड फूड होगा उसमें फूड एडिटिव्स डलेंगे, और फूड एडिटिव्स प्रूव हो गया है कि ये बहुत 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 खराब होते हैं। अत्यधिक मिर्च, मसाला, चिकनाई, खटाई, मीठा, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब रखेंगे, तो इनको नहीं लेना चाहिए आपको। अच्छा, समय, खाने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला खाना सुबह 9 बजे, दोपहर का खाना 1 बजे, रात का खाना 5 से 7 बजे। 8 बजे के बाद कभी भी कुछ खाएं पिए ना, पानी ले सकते हैं, दूध भी ना पिए। फिर पेन किलर्स, नींद की दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, तंबाकू, शराब और ड्रग्स न लें, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेगा। और सबसे लास्ट बात जो बताना चाहूंगा, जितनी ज्यादा सफेद चीज उतनी ज्यादा खराब। शक्कर और सॉल्ट, जो रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, वो न लें। सो ये आप जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सम्यक श्रम, सम्यक विश्राम और सम्यक आपके आहार, ये एक रूल है। So that was very nice answer of this particular question, sir. क्योंकि बहुत सारे doubts हम सारे members के यहाँ पे बहुत clear हो गए, क्योंकि that is very important. So moving further, sir, some people have the problem of frequent vomiting. जी. So what may be the reasons for frequent vomiting and what are the bad effects of it? Yeah. So देखिए, उल्टी एक अलार्म सिम्टम है, वॉमिटिंग इज एक अलार्म सिम्टम है। आपने कुछ बाहर खाना खाकर आए, रात को थोड़ी सा पेट में जलन हुआ, उल्टी हो गई, उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आप फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग्स कह रहे हैं, लंबे समय तक चलने वाली उल्टियां, वो ठीक नहीं है। सो उसके कुछ तो कॉमन कारण है, जैसे किसी को रीनल फेलियर है, किडनी की बीमारी है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, पर्टिकुलरली जो एल्डरली लोग हैं उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, लंग का इन्फेक्शन हो गया, यूरिन का इन्फेक्शन हो गया, उनमें सॉल्ट की प्रॉब्लम हो गई, जैसे सोडियम होता है, हाइपोनेट्रीमिया हो गया, हाइपोकैलेमिया हो गया, ब्रेन ट्यूमर। तो ये सारे कारण जो हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग हटके हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या कारण है? एसिडिटी, अल्सर की बीमारी, पेट में अल्सर हो जाना आपने सुना होगा, आंतें रुक गई, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। और हम डॉक्टर्स जो सबसे ज्यादा डरते हैं वो होता है अमाशय का कैंसर, कैंसर ऑफ स्टमक। सो जब भी किसी को उल्टियां ज्यादा चल रही हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलें, डिले ना करें।
हम लोग कुछ आपके ब्लड के टेस्ट करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, सीटी स्कैन भी किया जा सकता है, और हो सकता है हमें कई कई बार भर्ती करके हमारे को डायग्नोज करके और आपको ट्रीटमेंट देना पड़े। सो फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग्स अगर हैं तो उसको डिले ना करें, डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। And sir, one very basic problem जी। nowadays, and which is also a very alarming situation, and the last question for the day, that is a constipation problem. जी जी। So देखिए, why this problem exists? मेरी प्रैक्टिस में मेरे को सबसे डिफिकल्ट केस वो लगते हैं जो स्टूल से सेटिस्फाई ना हो पाए, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक हमारे लिए, बहुत जो है कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। खैर, सो कॉन्स्टिपेशन का मतलब है या तो स्टूल्स हार्ड है, या जोर लगाना पड़ता है उनको इवैक्यूएट करने के लिए, या एक सेंसेशन रहती है कि मोशन जो है जाकर तो आए लेकिन क्लियर नहीं हुआ, फिर गए फिर आए फिर गए, वो होता है। वेस्ट में कहते हैं अगर आप हफ्ते में 3 दिन से कम स्टूल पास करें तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में तो एक दिन भी न जाओ तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन ही मान लेते हैं। खैर, इसके कारण क्या है कि कुछ तो मेडिसिन हैं, जैसे कुछ लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं, कुछ लोग हार्ट फेलियर की दवाइयां लेते हैं, कुछ साइकियाट्रिक मेडिसिन लेते हैं मनोचिकित्सा के लिए, तो ये दवाइयां जो हैं ये कॉन्स्टिपेशन करती हैं। तो हम पहले हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आप कोई ऐसी दवा तो नहीं ले रहे। फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल, उस पर हम बात कर ही चुके हैं, कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल का खान पीन ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और रिफाइंड, मैदा जिसके अंदर ज्यादा हो, शुगर जिसके अंदर ज्यादा हो, तो ये चीजें लेने से, तेल चिकनाई ज्यादा हो और आपके फाइबर डाइट कम हो, तो उन लोगों के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। वैसे अगर आप मैकेनिज्म देखें कि ऐसा क्यों होता है, तो 3 चीजें हो सकती हैं। या तो आपकी आंत धीरे चलती है, जो बड़ी आंत होती है वो धीरे चलती है। सो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कोलोनिक ट्रांजिट स्टडी, कि कोलोन जो है वो कितनी जल्दी खाली हो रही है, उसका हम टेस्ट करते हैं। दूसरा है पेल्विक फ्लोर की मसल्स, जहां पर ये जब भी स्टूल को बाहर निकालना होता है तो ये मसल्स काम में आती हैं, उसको जोर लगा के और मसल से वो रेक्टम के थ्रू उसको बाहर निकाल दें, तो ये मसल्स या तो कमजोर हो जाती हैं या इनका कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। सो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं एनल मैनोमीट्री, और एक होता है डिफिकोग्राफी। ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हम करके, और जो बहुत डिफिकल्ट केसेस होते हैं उसके अंदर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो तो लाइफस्टाइल से ठीक हो जाते हैं। उनको कहता है भाई पानी थोड़ा सा ज्यादा ले लो, आप उसमें थोड़ा सलाद ले लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर डाइट ले लो, तो वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, और उसके अंदर हम ज्यादा कोई टेस्ट नहीं करते हैं। मेरी प्रैक्टिस में मुझे इसबगोल और त्रिफला बहुत पसंद है, क्योंकि इसका एक्शन बड़ा अच्छा होता है, बट कुछ नियम का ध्यान रखना होता है। जब भी आप इसबगोल लें तो अच्छा पानी के साथ लें, दूध के साथ न लें, कम से कम 2 ग्लास पानी जरूर लें, और इसका एक्शन आने में करीब करीब 2 हफ्ते लेते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखें इसके एक्शन में। त्रिफला अगेन नेचुरल है, आंवला, हरड़ और बेहड़ा इसमें होता है, और अच्छा है, लेकिन इसको रात को लेना होता है और 15 दिन के बाद एक थोड़ा सा गैप दे देना होता है। फिर हमारी कुछ और मेडिसिन आती हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन आती हैं जो कि ओरल ड्रग्स होती हैं, आप मुंह से उनको ले सकते हैं। कुछ कुछ बहुत खराब केसेस के अंदर जो है हमें एनीमा और सपोजिटरीज का भी काम में लेना पड़ता है, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हम एक वो सपोजिटरी लगा देते हैं और जिससे उनको काफी आराम आता है। सो ये कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट का एक तरीका है। So thanks a lot, sir. That was very fantastic to listen you on the gastroenterology problems and the appropriate lifestyle, how to live, and how to overcome from the sedentary lifestyle. Our members will be definitely benefited by your words of wisdom and the kind of experience you have. So thanks a lot for to come and join us on our request. Definitely, it will be very fruitful. Thanks a lot, sir. Yeah, and thank you so much for framing such nice questions. और मुझे भी इसके लिए कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, but it is always good to learn. Thank you so much. Thanks a lot, sir. Thank you.